A very good morning, dear students. Welcome back to BBVN online classes. Today in this class of class 12 mathematics, we are discussing about the concept of differentiability. In the previous classes, we discussed about the continuity of the function at any point, how we find the limit exists, how we find the LHL RHL limit, how we find the relationship between the unknown variable, how we find the value of the unknown variable if the given function is continuous at the different points. ये हमने previous classes में किया. Now the new concept, that is the point and the main concept of the class 12th mathematics, that is concept of differentiability. When any function is called differentiable, कब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, वो हम चेक करेंगे आज. तो लेट अस टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन. लेट वी टेक एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर, जिनकी डोमेन रियल नंबर हो, रेंज रियल नंबर हो, all are the real valued function, right? So let f be a function which is a real valued function and c be a point in its domain. हम क्या करेंगे? Let f be a real function and c be a point which belongs to the domain of this function, which belongs to the domain of the function. उस फंक्शन की डोमेन में लाई करेगा. such as that how we write the differentiation of this function, then the differentiation of function is written as f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon what? X minus c. Whether it is given that limit exists at x equal to c, ये फंक्शन का क्या कहलाएगा बेटा? डिफरेंशिएशन. हम निकालते थे 11th क्लास में LSD, RSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब हम करते थे. f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हम लें और देयर इज ए पॉइंट c which is belonging to the domain of the given function, then the derivative of the function at the given value can be written as f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc x minus c, where it is provided that it is given that the limit should be equal, the limit must be equal. Then it can be said that left hand derivative should be equal to the right hand derivative if the function is differentiable. If the function is differentiable or the limit is exist, then it can be said that left hand derivative of the function should equal to the right hand derivative of the function. अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं? एट x इक्वल टू c वी चेक व्हाट? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LSD लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx minus fc upon what? x minus c. Limit will change to itself. Limit s tends to 0 f, this x is what? c minus h minus fc upon x c minus h minus c, cancel down. Then limit s tends to 0 fc minus h minus fc upon what? Minus h. Then what is the case of right hand derivative RSD? Then again we can say limit x tends to c positive fx minus fc upon what? X minus c. Then limit will change to itself. S tends to 0 f x plus c is c plus h minus fc upon this x is c plus h minus c, cancel down. Then limit s tends to 0 is what? fc plus h minus fc upon what? h. If the function is differentiable, then LSD, RSD both are equal. If the function is differentiable, then LSD is equal to RSD. Differentiable. It means if LSD equal to RSD, अगर LSD equal to क्या होगा बेटा? RSD होगा. It means limit at x point any point c. अगर कोई function differentiable है, it means LSD और RSD क्या होंगे? Equal. It shows that limit x tends to c negative of fx minus fc upon what? X minus c, that equals to limit
x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ fx माइनस एफ सी अपॉन वट x माइनस सी। आप चाहें तो इसको h में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें h में भी डाल सकते हैं। कैसे? लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच दैट इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन h. It means the given function is differentiable at any point. Then how we check the function is differentiable? It means the function is differentiable at the given point. The function is differentiable at the given point. अब फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन? हाउ वी फाइंड द डिफरेंशिएशन एंड व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इफ द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और द लिमिट विल एग्जिस्ट एट द गिवन पॉइंट। तो बेटा एक बात सुनिए, जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो ये वो डिफरेंशिएबल होंगे या होंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, ऑल कंटिन्यूस या ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन दे आर कंटिन्यूस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी एग्जिस्ट करे या कन्वर्स भी सही हो। हाँ, ये सही है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन हैं वो सारे क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे। वो सारे क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन? नाउ वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? कैसे हम डिफरेंशिएशन को सोल्व करेंगे? डिफरेंशिएशन है क्या एक्चुअली में? हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? सब कुछ बातें। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमें देता क्या है? डिफरेंशिएशन हमें देता क्या है? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं बेटा। उन फंक्शंस में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको डिफरेंशिएबल है भी तो हमें क्या मिलेगा उससे? लेट अस टू चेक। दिस इज ए कर्व, सम फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स सम फंक्शन। लेट्स सी बी ए पॉइंट। दिस इज, मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसकी डोमेन है, एंड लेट अस ए पॉइंट सी इन इट्स डोमेन सी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे, इस फंक्शन पे, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? सी कोमा एफ सी, यही तो होगी, सी कोमा एफ सी। लेट अस वी चेक देयर एच इज ए स्मॉलर क्वांटिटी विच टेंड्स टू 0, पॉजिटिव क्वांटिटी विच टेंड्स टू 0। एक छोटे से क्वांटिटी है एच जो 0 से टेंड्स कर रही है, 0 की तरफ टेंड है कि नेग्लिजिबल है। इट मीन्स अगर मैं c प्लस एच करूँ तो यहाँ कुछ पॉइंट आएगा मेरे पास, c माइनस एच करूँ जस्ट c से पहले आएगा। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखिए ध्यान से, c प्लस एच और फंक्शन की वैल्यू c प्लस एच, कुछ इस तरह से होगी, राइट। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा? c माइनस एच एफ सी माइनस एच, ये कुछ वैल्यूज होंगी। लेट अस दी द पॉइंट कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B एंड दिस पॉइंट इज O या P मान लो, तो एक बात बताइए, मैं इस AP को ज्वाइन करूं, इस AP को, दिस इज ए कोड ना, दिस इज कोड, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ कोड AP इज ए लाइन एंड कोड इज ऑल्सो ए लाइन। लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? पॉइंट फॉर्मेट से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 अगर आप लेंगे तो एफ सी माइनस एच माइनस y1 एफ सी अपॉन x2 c माइनस एच माइनस व्हाट c, कैंसिल डाउन। दिस इज व्हाट एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन व्हाट माइनस एच। सिमिलरली इन द सेम मैनर व्हाट द स्लोप ऑफ BP, ये भी तो एक कोड ही है, BP भी तो एक कोड है। देन स्लोप ऑफ कोड BP
दैट इज व्हाट, अगेन वही y2 माइनस y1 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। क्या है ये, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन वट एच, अपॉन वट एच। अब देखिए ये जो एच है ये सी की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा क्वांटिटी और कम होती जाएगी, यानी कि ये लाइन एकदम सीधी होती जाएगी। यहाँ से भी एच की तरफ इधर बढ़ेगा तो इसकी तरफ आधा चले जाएगा। इसका मतलब जो ये कोड थी ये एक इस पॉइंट पे आ जाएंगी और इस पॉइंट पे ये क्या देंगी, एक टेंजेंट देंगी, आपको एक टेंजेंट देंगी। और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो दे आर इक्वल। स्लोप क्या होगा भाई, ए पॉइंट यहाँ आ गया, बी आ गया, देन स्लोप ऑफ बी ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी, बी स्लोप ऑफ chord AP equal to slope of chord BP, and you can see that this is your LSD left hand derivative and this is what your RSD right hand derivative। C का left और right part यही तो है। It means if they are equal, it means function is differentiable। It means at this point the differentiation is possible and we have to derive that differentiation is give the slope of tangent। ये क्या होगा, tangent का slope। It means differentiation of a function gives us the slope of tangent at that point on which we have to differentiate। इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन किसी फंक्शन का हमें उस फंक्शन में जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप देगा जिस पॉइंट पे हम उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इट मीन्स द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इट इज द मीनिंग ऑफ द डिफ्रेंशिएशन, राइट। नाउ वी कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.2, बट उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं, सम डिराइवेशन और सम formulae depending on the differentiation of functions, algebraic functions, trigonometric functions, exponential functions, logarithm functions। तो उनके differentiation के कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। then we go to the exercise 5.2। तो some formulae depend on derivative, है ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूँ कुछ। एक्चुअली में फर्स्ट हम क्या मानते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स सम फंक्शन ऑफ x। हमने एक फंक्शन लिया y इन टर्म्स ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x, देन इस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज d बाई डी एक्स ऑफ वट y, एंड y इज सम फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स अगर हमारे पास y मैंने लिया x पावर n, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो बेटा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n क्या होगा, पावर बाहर आएगी, पावर में से एक कम होगा और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं है। इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज व्हाट, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। d बाई डी एक्स ऑफ x दैट इज 1, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट टर्म और एनी c, k and c बोथ आर द रियल कॉन्स्टेंट दैट इज 0। पॉलिनोमियल लीनियर आपके पास आ गया, कांस्टेंट आपके पास आ गया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव अच्छा और आ जाए आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ, इस तरह से आ जाए ax प्लस बी दैट इज व्हाट ax, b तो कांस्टेंट इसका तो 0 होगा, ax में बेटा ये इस तरह की क्वांटिटी आ गई कि सम डेरिवेटिव ऑफ व्हाट k इंटू एक्स, तो कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि x का क्या होगा k, तो यहाँ ax का क्या हो जाएगा बेटा a। डेरिवेटिव ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा कोस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होगा बेटा सेक स्क्वेयर एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स इसका होगा माइनस कोस एक्स स्क्वेयर एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट सेक एक्स इसका होगा बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होगा बेटा माइनस कोसेक एक्स इंटू व्हाट कोट एक्स। एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डिफरेंशिएशन में हमेशा एक नेगेटिव आता है, जस्ट लाइक दैट। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन एंड जस्ट ऑन।
तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी वैसे वैसे हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में उसके डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले देते जाएंगे. दिस इज द कंप्लीट बेसिक फॉर्मेट और द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. How we derive that any function is differentiable at any point, what is the meaning of differentiability, how we find the derivative of any functions, and there are some formulae of the algebraic functions and their trigonometric functions. In the next video we continue our fifth chapter from exercise 5.2. Thank you, have a nice day.